Hello everyone, this is your first period of English language and today we will discuss about the topic was and were. First of all, you all know about helping verbs. These are is and are, right? I told you this in our previous classes. So this is to let you know these are helping verbs. You know about verbs. These are helping verbs. All action words are called verbs and these are helping verbs. Helping verbs always used to be in a sentence. Was and were also helping verb. Has, have and had is also a helping verb. They always use with singulars and plurals also. As first of all, I'm going to tell you where was will apply and where were will apply. Was will apply with singulars and were will apply with plurals. Singular he, she, it, plural, you and they, these seven the candidates, there is a group of candidates or any two candidates, more than two candidates, we will use were with them and was will go with he, she, it and singulars. Was and were will use for to represent in sentence about past. Past means the work already done in yesterday. That is a time which is past. At that case we will use was and were. I am going to write the statements here. So this is clear to you all. Where was will put and where were will put and these will use for the statements which related to the past. So I am going to write few statements here, even few words here. First of all, you have to recognize where we will put was and where we will put were. These are two words here and they are five. You have to recognize where you will put was and where you will put were. He stands for singular or plural. He stands for singular. When we indicate someone who is there in front of us, we knock that person with he, and he is always used for masculine gender, for male. Alright? So he is a singular, that's why we will use was here. Now they. They means there are many candidates where we are going to indicate or where we are indicating now. So they stand here for many and many means plural, and when plural is there we have to write were. Third number, books. Books is a plural word. As is here with book, that means this is a plural. And where is plural we will put were. Apple. Apple is a singular and the plural of apple is apples. Alright, so there is apple, a single fruit here. That's why we will use was. Now man. You know the plural form of man? Man singular and man plural. Right? So this is a plural word. This is a plural word. So we will write here what? Is that clear? Where there is singular candidate or a singular thing
or he, she, it, we will put was. If there are plural, we will put were. Alright, I hope this concept is clear to you all. Now we will move for statements, that means sentences. 4 statements are here and you have to fill was and were on given space. But before of that, read all sentences very carefully, okay, and clearly. First is Ram dash quite yesterday. Second, they playing in the park. Third, Neetu and Nema at home yesterday. Fourth, these rooms not clean yesterday. Look at here, this is yes, okay? This is S. Look at the statements again. So look at first statement, that is Ram. Ram is a single person, right? That means a singular noun is here. And when single person is here, we have to use was. Ram was quiet yesterday. He was quiet yesterday or she was quiet yesterday. Where is singular, we will put was. And where is plural, we will put were. Second statement, they. They always stand for more than one candidate. That means plural is here, and when plural is there, we will use were. Were. Now third, Neetu and Neha. How many girls are here? 2 girls. First is Neetu and 2. Second is Neha. Now plural is formed here. When more than one candidate is there, we will use were. We have to use was for a single thing, single person, single animal or single place, okay? Or otherwise for plurals, many candidates, for many things, many animals, we have to use were. Last one is these rooms. Rooms, as is here, rooms. Rooms, that means this is plural of room. Rooms, and when plural is here, we have to write were. I hope the concept of was and were is clear here to all. Was is used to that case where singular thing is there, okay, singular person is there, and were will put there when the thing or the candidates are more than one. That means they are plurals. They are in form of plurals. We will put were at the place of helping verb. Okay, we will use were at the place of helping verb. Was and were are helping verbs, and these are stand for the action which is already done in past time, yesterday. Okay, now I'm going to describe it in Hindi for your comfort. Was, were, ये यूज होते हैं वर्ड था के लिए, और was और were का यूज जो हम करते हैं, was का यूज करते हैं जब कोई एक चीज की बात होती है, किसी एक इंसान की, किसी एक सामान की, किसी एक चीज की, किसी भी एक चीज की बात करते हैं, इंसान हो या सामान या जगह, जब किसी एक चीज की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं was। और जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम यूज करते हैं were। टेबल्स, दिस इज द प्लूरल ऑफ टेबल, राइट? ये जो है प्लूरल है टेबल का, टेबल्स। सो जब टेबल्स आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? वर, क्योंकि हम वर का यूज करते हैं कई, मतलब एक से ज्यादा सामान के लिए, और वॉज का यूज करते हैं किसी एक सामान के लिए। टेबल के साथ वॉज आएगा और टेबल्स के साथ में वर आएगा। ऐसे ही बुक सिंगुलर है, बुक के साथ में वॉज आएगा और बुक्स वर आ जाएगा। कोई एक कैंडिडेट है, अगर कैंडिडेट है जैसे रीना, रीना के साथ में वॉज आएगा, बट रीना एंड मीना 2 कैंडिडेट्स हो गए, रीना एंड मीना, तब वर यूज करेंगे। तो आपको वॉज एंड वर का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा।
related this topic. Okay, words and word. How to form question from a simple sentence with the use of words and word. Ram was there. This is a simple sentence, and how we will form interrogative sentence from this simple sentence. Interrogative sentence means question. Question from simple sentence. So we have to put helping verb, that is was first, was, then first, Ram, and then last one, there. And then put question mark. Next statement is books were on the table. Books were on the table because books are here and this is a plural form of book, that's why we put were here. And when we have to convert this statement in a question statement, we will put helping verb first, so were, and then after that, after put helping verb in first place, we have to put the same sentence as it is. Alright, were, then books on the table, and then put question mark. When we convert a simple sentence to an interrogative sentence, we always put helping verb at the first place and then the remaining sentence as it is. That becomes a interrogative sentence, that means a question sentence, and this is the basic form in how to form a question sentence from a simple sentence. Alright, always put helping verb at the first place and then follow the whole statement again right after helping verb. So now all concepts are clear about was and word and how to form question statement from a simple statement. So students, complete your work which is given in your book, the exercise which is given in your book. We will meet again in our next class with another topic. Till then, complete your work. Bye bye. Thank you and thank you. Good morning students, welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, this is your second period and this period is of Hindi language. So take out your Hindi language book. Okay? बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक बाहर निकालें और पेज नंबर 33 प्रश्न संख्या 33 ओपन करें, जहाँ पर दिया गया है पाठ 7 सर्वनाम। पाठ 7 सर्वनाम, पेज नंबर 33। बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कल ऑडियो में पाठ 6 वचन के समस्त अभ्यास कार्य मिलान करा दिए थे और उससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 वचन पढ़ाया था। मुझे आशा है कि आपने ये पाठ पूरा कर लिया होगा और उसे याद भी किया होगा। इसके साथ ही मैंने आपको जो पुनरावृत्ति परीक्षा दी जाती है जो पेज नंबर 31 32 पर दिया गया है, वो भी मैंने आपको दिया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर आपको बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। कृष्ण देवकी व वासुदेव के पुत्र थे। कृष्ण देवकी व वासुदेव के पुत्र थे। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उन्हें उनकी रक्षा के लिए गोकुल छोड़ आए थे। उन्हें वे उनकी रक्षा के लिए गोकुल छोड़ आए थे। वहाँ माता यशोदा ने उनका लालन पालन किया। वे वहाँ सुरक्षित रहे। तो बच्चों,
इसमें जब हमने पहली लाइन पढ़ी कृष्ण देवकी व वासुदेव के पुत्र थे, तो यहाँ पर आपको कृष्ण का नाम दिया गया है, देवकी माता का नाम और वासुदेव जी का भी नाम दिया गया है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, उन्हें और उनकी शब्द नीले रंग से दिया गया है। तो यहाँ पर उन्हें शब्द किसके लिए आया है, यहाँ पर उन्हें शब्द किसके लिए आया है, किसकी रक्षा के लिए गोकुल छोड़ाए थे, कृष्ण की। तो ये उन्हें शब्द किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है। और किसकी रक्षा के लिए, उनकी, यानी उन्हें और उनकी शब्द किसके लिए आए हैं, कृष्ण के लिए आए हैं। फिर जब माता यशोदा ने उनका लालन पालन किया, तो फिर से उनका शब्द किसका लालन पालन किया, उनका अर्थात कृष्ण जी का लालन पालन किया। तो उनका शब्द यहाँ पर किसके लिए है, कृष्ण के लिए, अर्थात कृष्ण नाम प्रयोग करके, कृष्ण नाम का बार बार ना प्रयोग करके हमने उनके लिए क्या लिखा है, उन्हें, उनकी, उनका, वे। ठीक है, अर्थात वे शब्द जो किसी नाम के स्थान पर आते, नाम के स्थान पर आने का अर्थ है संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, यह, ये, उसकी, उनकी, उन्हें, तुम, मैं, हम। ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम सभी का नाम। राम एक लड़का है, वह एक लड़का है। श्याम एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो राम और श्याम दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं, वह। और ये दोनों वह क्या है, दोनों के लिए एक समान है। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे मैं, वह, तुम, हम, आप, मैंने, उसने, हमने, तुमने, उन्होंने, मुझ पर, हमसे, तुमसे, उनसे, उसमें, मुझमें, आप में, तुम में, मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, आदि। बच्चों, सर्वनाम शब्दों में भी वचन का प्रयोग होता है, जैसे मैं। ठीक है, मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। ठीक है, वह का बहुवचन क्या होता है, वे। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। बच्चों, जब भी हम किसी से बात करते हैं या हम कुछ राइट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हम किसी का नाम बार बार नहीं लिखते हैं। अगर हम किसी के बारे में बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखते, आपको अपने टॉपिक मिला माता जी या पिताजी, आपको अपनी माता पर या पिता पर कोई निबंध लिखना है, आपको कुछ बोलना है, तो आप एक बार लिखेंगे मेरी माता का नाम है, जो भी नाम है वो लिखा। लेकिन बार बार आप उनका नाम लिखकर उनके बारे में नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी माँ का नाम शीला है, तो उन्होंने लिखा मेरी माता का नाम श्रीमती शीला है। अब वो बार बार उनका नाम नहीं लेगा कि शीला एक गृहिणी है, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। क्या लिखा जाता है, वह एक महिला, कुशल महिला है, वह एक गृहिणी है, या वह एक बिजनेस वूमेन है, जो भी है। हम किसी का नाम बार बार वाक्य में या शब्दों में बोलने में प्रयोग ना करके उनके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यही शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। आइए अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण दे रही हूँ, फिर आपको मैं अभ्यास कार्य कराती हूँ। बच्चों, यहाँ पहला वाक्य लिखा है राम एक बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए, राम के लिए अगर हम दूसरा कोई वाक्य लिखे या राम के लिए हम क्या सर्वनाम लिखेंगे, तो राम की जगह पर इस वाक्य में क्या है, दूसरा वाक्य क्या है, वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो इसी वाक्य के लिए हमने राम के लिए क्या शब्द लिखा, वह। राम एक बुद्धिमान लड़का है, वह एक बुद्धिमान लड़का है, यानी राम के लिए हमने क्या लिखा है, वह। तो संज्ञा के स्थान पर हमने क्या शब्द लिखा, वह, या लिखा होता उसे आम बहुत पसंद है, तो उसे किसके लिए आता, राम के लिए। तो ये हो गया सर्वनाम। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है राहुल और राकेश स्कूल जाते हैं। तो कौन स्कूल जाता है, राहुल और राकेश। दूसरा आगे उनके बारे में दिया गया था कि वे अच्छे बच्चे हैं। तो अब जब हम राहुल और राकेश के बारे में आगे और बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, राहुल और राकेश स्कूल जाते हैं,
राहुल और राकेश अच्छे बच्चे हैं। राहुल और राकेश कभी झगड़ा नहीं करते हैं। हम बार बार उनका नाम न लेकर के क्या प्रयोग करेंगे, राहुल और राकेश की जगह वे। ठीक है, वे। ठीक है, वे अच्छे बच्चे हैं। राहुल और राकेश वे अच्छे बच्चे हैं, वे साथ में खाना खाते हैं, वे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो बाद में हम क्या प्रयोग करते हैं, सर्वनाम। बच्चों अब इस पाठ में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन व बहुवचन रूप होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जैसे मैं, हम, गए, वे। ठीक है, मेरा, हमारा। ठीक है, उसका, उनका। तो अब जब आप ये जो आपको टेबल दी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सर्वनाम शब्द स्त्री और पुल्लिंग में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों का कोई विलिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये पाठ पुनः पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अभ्यास कार्य करते हैं। पहला अभ्यास कार्य, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य है सर्वनाम का प्रयोग। सर्वनाम का प्रयोग, पहला विकल्प है संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, दूसरा विकल्प है विशेषण के स्थान पर किया जाता है, और तीसरा विकल्प है क्रिया के स्थान पर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया ये सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य दिया गया है सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में, सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में पहला विकल्प है सहजता व सुंदरता आती है, दूसरा है असहजता और असुंदरता आती है, तीसरा दिया है अटपटी व बेतुकी हो जाती है। तो नीचे के दोनों ऑप्शन ही पूरी तरह गलत है। तो पहला विकल्प सही है क्या, कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सुंदरता व सहजता आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले अभ्यास कार्य में, जिसका नाम है दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। ठीक है, आइए हम इसे समझते हैं। पहला वाक्य दिया गया है वह खेल रहे हैं। तो बच्चों वह खेल रहे हैं, ये वाक्य कैसा है, गलत है। रहे हैं अर्थात आपका जो कर्ता है वो कैसा होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह खेल रहे हैं, गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, वे। तो आप वह को क्या लिख देंगे, वे खेल रहे हैं। ठीक है, इसको आप दूसरी तरह से सही कर सकते थे। अगर लिखा होता वह खेल रहे हैं, तो अगर हम क्रिया में परिवर्तन करते थे तो क्या हो जाता, वह खेल रहा है। इसको हम दो तरह से सही कर सकते थे, या तो हम सर्वनाम के रूप में परिवर्तन करते, उसे बहुवचन करते तो वो क्रिया के हिसाब से सही हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हम सर्वनाम वही रखते वह, तो हमें क्रिया में परिवर्तन करना पड़ता, वह खेल रहा है और वे खेल रहे हैं। अब हम दूसरे वाक्य में आगे बढ़ते हैं, पानी में कोई पड़ा है। पानी में कोई पड़ा है, ये वाक्य कैसा है, गलत है। पानी में कोई नहीं, कुछ गिर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, पानी में कुछ पड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ। और आप इस शब्द इस वाक्य को सही करके पुनः दिए गए स्थान पर लिख देंगे, पानी में कुछ पड़ा है। फिर तीसरा वाक्य दिया गया है वो करेगा जो भरेगा। ये वाक्य भी कैसा है, गलत। इसको वर्तनी गलत लिखी हुई है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जो करेगा वो भरेगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगली मैं आपको इसके उत्तर पीडीएफ में दूंगी, आप मिलान करेंगे। चौथा अभ्यास कार्य आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में दिया गया है नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द चुनकर कंप्यूटर में लिखिए। बच्चों पेज नंबर 35, वहाँ पर कुछ शब्द दिए गए जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द मिले हुए हैं। आपको क्या करना है, इन्हें अलग अलग करना है। जैसे कौन, पीला, वह, उसने, कुछ, कोई, कीर्ति, तुम, कहा, मुझे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्हें अलग अलग करना है। जैसे कौन, कौन शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो आप इसे लिख देंगे। अब लिखा है पीला, तो पीला शब्द सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो आप इसे नहीं लिखेंगे। फिर वह क्या है, सर्वनाम है, तो आप लिख देंगे। और एक लाइन में आपको एक शब्द ही लिखना है, आप इसे पहले स्वयं करें।
फिर रचनात्मक कार्य में है खाली स्थान में सर्वनाम शब्द लिखकर कहानी को पूरा कीजिए। इसमें एक हाथी की कहानी दी गई है, पूरी कहानी दी गई है, बस आपको उस हाथी के लिए या इस कहानी के हिसाब से आपको इसमें सर्वनाम फिल करने हैं। जैसे किसी जंगल में एक हाथी रहता था, जंगल के समीप एक नदी थी, डैश रोज उसमें नहाने जाता था। तो कौन नहाने जाता था? हाथी। तो आप यहाँ पर पुनः हाथी का लिखकर हम क्या लिखेंगे? वह रोज उसमें नहाने जाता था। इसी प्रकार आपको ये कहानी पूरी करनी है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर पाठ 7 सर्वनाम समझा दिया है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये पाठ पुनः पढ़ना है, इसके समस्त अभ्यास कार्य पूरे करने हैं और जो परिभाषा दी गई है आपको परिभाषा भी याद करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, complete your homework